Welcome friends. In this particular video, we are going to learn about the single phase preventer. See why we need a single phase preventer. Before starting the single phasing preventer technique, we need to follow some points that, see, you may think that as the motor will continue to run after single phasing, then why we need a single phase preventer? Okay, so we need a single phasing preventer because as after single phasing, the motor will draw current 2.5 times of the normal current. So motor windings may get damaged, even may burn also. So अगर थ्री फेस आपकी वाइंडिंग है उस पर अगर जो है थ्री फेस इंडक्शन मोटर वर्क कर रही है, लेकिन सिंगल फेजिंग अगर वहाँ पे कोई प्रोड्यूस हो रही है, फॉल्ट की वजह से जो है वो सिंगल फेजिंग आ चुकी है, तो उसके कारण आपका जो करंट ड्रॉ होगा वो 2.5 टाइम्स होगा, नॉर्मल करंट से 2.5 टाइम्स ज़्यादा वो जो है अपने वाइंडिंग के अंदर लेगा करंट, ठीक है. सो देयर आर many bad effects of single phasing, so we need a single phasing preventer. That's why we need the single phasing preventer. So how a single phasing preventer works? See, basically a single phase preventer works like a switch only, but it automatically closes the circuit in normal condition and opens the circuit in the fault condition. फाइन, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, अगर फॉल्टी कंडीशन है तो वो सर्किट को ओपन कर देगा, अगर नॉर्मल कंडीशन है तो वो क्लोज ही रहेगा, ठीक है. सो दैट इज सिंगल फेजिंग. सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सी देयर आर टू डायग्राम्स. First one is voltage. There are types of single phasing preventer. First one is voltage sensing. Second one is current sensing single phasing diagram. So we need to see. We can say that if single phasing occur, देखिए यहाँ पे क्या होगा, if the one of the supply line is disconnected due to the open circuit or improper contacts in switch, then still the motor continues to run. The power is then supplied to the remaining windings and the current in the other phases increases to about √3 times. कितना ज़्यादा हो जाएगा सिंगल फेजिंग की वजह से? √3 times जो है वो नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा. So this is called single phasing, which results in unbalanced stator current. उसकी वजह से क्या होगा, अनबैलेंस स्टेटर करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा. सो द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन दिस अनबैलेंस करंट कॉल्ड नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट दैट कॉजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मेन फ्लक्स. अगर मेन फ्लक्स इस तरह से रोटेट हो रहा है तो ये फ्लक्स जो इस तरह से रोटेट होगा, हमें जो है पता है पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस जो किस तरह से. देखिए पॉजिटिव सीक्वेंस अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन है तो आपका जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो मान लीजिए कि ये RYB बैलेंस कंडीशन में है, RYB ये पॉजिटिव सीक्वेंस हो गई आपकी. नेगेटिव सीक्वेंस होगी तो नेगेटिव सीक्वेंस कुछ इस तरह से होगी, और ये देखिए ठीक है, ये इस तरह से मूव करेगा, और ये जो नेगेटिव सीक्वेंस होगी कुछ इस तरह से मूव करेगी, ठीक है. तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपकी जो स्पीड होगी वो 2 टाइम्स हो जाएगी. वो कितनी हो जाएगी आपकी? 2 टाइम्स हो जाएगी. सो अगर 2 टाइम्स हो जाएगी तो ये जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो प्रॉब्लमेटिक रहेगा. सो ये नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो भी रोटेट हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा मेन फ्लक्स के. सो दिस रिजल्ट्स इन double frequency current, and this double frequency current is to induce in the rotor to cause its heating. So thus the major damage to motor may takes place due to single phasing if proper precaution is not taken. So as the phase over current relays react slowly, they cannot give the instantaneous protection against single phasing. So for small motors, separate protection against single phasing is normally not provided, as thermal relays sense the increased current in remaining phases due to the single phasing and provides sufficient protection. I repeat, for small motors, separate protection against single phasing is normally not provided, as the thermal relays sense the increased current in remaining phases due to single phasing and provides the sufficient protection. Fine. So ये जो हो गया इंट्रो हो गया कि सिंगल फेसिंग प्रिवेंटर जो है वो किस तरह से, मतलब क्यों हम यूज़ करते हैं. सो सिंगल फेसिंग प्रिवेंटर के अंदर क्या होता है, ये वोल्टेज सेंसिंग सिंगल फेसिंग प्रिवेंटर. देखिए ये वोल्टेज सेंसिंग प्रिवेंटर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है वो दिया गया है, हालांकि थोड़ा इस तरह से ब्लर है. यहाँ पे कुछ ये जो है वो रिले कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे 4 डायोड का जो है वो ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो भी यूज़ किया गया है. यहाँ पे जो है 440 वोल्ट 12 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर जो है वो यूज़ किया गया है. ये 3 फेज अपना AC सप्लाई है. देखिए ये जो है 3 फेज सप्लाई है. सो
उसके अंदर क्या होगा, देखिए 12 वोल्ट की रिले, यहाँ पे ये रिले देख सकते हैं, तो ये 12 वोल्ट की रिले होगी। 440 डिवाइड बाई 12 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर होगा, तो 440 वोल्ट डिवाइड बाई 12 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे है for operating the relay. PN junction diodes for the bridge rectifier and some capacitor, transistors, Zener diodes, resistor and variable resistors are there. Okay, so अगर मैं आपको बताऊं कि सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर कैसा होता है, आप देख सकते हैं ये जो मैंने दिखाया गया है वो है सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कॉन्टैक्ट है वो है RYB, इसके ऊपर जो है वो पूरा दिखाया गया है। ये 3 फेज है अपना और ये 2 मोटर यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। देखिए ये आपका हो गया सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर। उसके बाद देखिए कनेक्शन जो है किस तरह से होगा। सो द सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर विच इज शोन, देखिए ये 5 टर्मिनल, ये अगर मैं बोलूँ ये देखिए यहाँ पे ये जो है ना ये सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर है आपका, ठीक है। देखिए इस तरह से कुछ। सो सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर जो भी आपको दिखाया गया ये इसके जो है ना टर्मिनल्स, देखिए यहाँ पे ये 3 टर्मिनल्स हो गया, ठीक है। सो ये हो गया आपका रेड, येलो और ब्लू, ओके, एंड विच आर टू बी कनेक्टेड बिफोर द मोटर एंड आफ्टर द कॉन्टैक्टर। सो द रिमेनिंग दिस टू पर्टिकुलर, देखिए ये तीनों के तीनों कॉन्टैक्ट यहाँ पे आ गए और ये दोनों कॉन्टैक्ट जो है किस तरह से कनेक्टेड होंगे, ये जो आपका कॉन्टैक्टर है जो क्लोज करेगा आपके सर्किट को वहाँ पे कनेक्ट होगा, ठीक है। सो अगर आप देखें कि यहाँ पे RYB 3 फेजेस यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। ये सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर है अपना। अभी मैं सिर्फ कनेक्शन आपको समझाता हूँ। ये RYB यहाँ पे सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर के अंदर दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूँ कि यहाँ पे एक जो है वो है कॉमन पॉइंट और दूसरा जो पॉइंट होगा वो आपका होगा नॉर्मली क्लोज्ड, ठीक है। ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होगा। सो कॉन्टैक्टर जो है उसकी रेटिंग क्या होगी, ये जो कॉन्टैक्टर है यहाँ पे जो है वो 230 वोल्ट का होगा। देखिए ये जो आपकी है 1 2 3 ये तीनों के तीनों आर फेज है, सॉरी RYB फेज है, तीनों के तीनों फेज है यहाँ पे तीनों के तीनों फेज। और यहाँ पे जो है ये जो ऑफ कंडीशन है नॉर्मली जो है वो क्या रहता है, ये नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट जो वो रहता है, ठीक है। सो अगर मैं देखूँ, देखिए ये तो सिर्फ अभी 3 फेज इंडक्शन मोटर हुआ, ये RYB तीनों के तीनों फेज हो गए, ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट 230 वोल्ट हो गया। अभी देखिए अगर मैं कुछ इस तरह से आपको दिखाऊं कि ये देखिए ये जो है वो कंप्लीट डायग्राम आप देख सकते हैं कि मोटर जो है यहाँ पे एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है और यहाँ पे जो है ये है आपका सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर। यहाँ पर देख सकते हैं आप नॉर्मली क्लोज स्विच है और ये ऑन स्विच है। इसकी कनेक्शन देखिए आप RYB ये तीनों के तीनों इस तरह से, ये कॉन्टैक्टर में, ये कॉन्टैक्टर में और ये कॉन्टैक्टर में। यहाँ पे जो मोटर जाएगी मोटर को कनेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से आएगा। ये RYB कनेक्शन जो है कुछ इस तरह से आ गया है, ठीक है। और ये दो कॉन्टैक्ट यहाँ पे रहेंगे, ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है और यहाँ पे एक कॉमन टर्मिनल भी होगा। तो इस तरह से ये जो है वो सिंगल फेजिंग डायग्राम, सिंगल फेज प्रिवेंटर का जो है वो डायग्राम इस तरह से दिखाया गया है। और अगर आप देखें तो ये देखिए आप, ये पूरा का पूरा जो है मैंने इस तरह से कुछ दिखाने की ट्राई किया। देखिए आप 12 वोल्ट, इसके अंदर क्या होगा, सिंगल फेज प्रिवेंटर जो है उसके अंदर क्या होगा, ये जो है ना इसके अंदर क्या होगा ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये 12 वोल्ट की रिले है, ये आपका देखिए नॉर्मली क्लोज टर्मिनल, ये कॉमन टर्मिनल है एक, यहाँ पे 3 फेज सप्लाई RYB और ये देखिए यहाँ पे 440 बाई 12 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ये रिले के ऑपरेट होने के लिए ये ट्रांसफार्मर हमने रखा गया है स्टेप डाउन करेगा। और ये 4 डायोड फॉर रेक्टिफायर सर्किट जो है वो हमने यूज़ की है, ठीक है। सो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे जो है वो कोई फॉल्टी कंडीशन आया है। सो यहाँ पे देखिए कोई मान लीजिए ये अभी जो है वो विदाउट जो है फॉल्ट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ऑक्सिलरी सप्लाई है वो इस तरह से कुछ कनेक्टेड है और ये जो है वो कुछ इस तरह से नॉर्मली क्लोज में कनेक्टेड है और इसका जो फेज होगा वो इस तरह से कुछ कनेक्ट होगा इस तरह से। तो यहाँ पे 230 वोल्ट कॉन्टैक्टर जो है वो कुछ ऑपरेट नहीं करेगा और ये जो है वो क्लोज कंडीशन में ही रहेगी विदाउट अगर फॉल्ट नहीं है तो। लेकिन अगर फॉल्ट हुआ, देखिए आर फेज जो हो गया उसके अंदर कोई फॉल्ट आया, डिस्कनेक्ट हो गया, तो इस फॉल्ट की वजह से क्या होगा, ये जो पूरा आपका कॉन्टैक्टर है वो ओपन कर जाएगा और आपकी रिले जो है ऑपरेट कर जाएगी। लेकिन कैसे करेगी ऑपरेट, मैं आपको जो है बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे समझाने की ट्राई करता हूँ। देखिए ये जो है ये पूरा का पूरा जो है वो मैंने सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर दिखाया गया है, ठीक है। सो इट कंसिस्ट ऑफ CT दैट इज कनेक्टेड इन ईच फेज। यहाँ पे जो है वो ईच फेज में कनेक्टेड है। द आउटपुट ऑफ द कंट्रोल सर्किट इज फेड टू द लेवल डिटेक्टर
and which senses the magnitude of the unbalance. So depending on this output from the control circuit and the tripping command to the starter or the circuit breaker is given when the negative sequence currents exceed its preset value. So we can say that during faulty condition, this balance is disturbed and the current is induced in the secondary of the trip of the circuit breaker. Secondary to the trip, and it will trip the circuit breaker through relay. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है कंट्रोल सर्किट है अपना, ये तीनों के तीनों फेज दिए गए हैं, ये CT है, CT1, CT2, CT3। तो हमें पता है कि CT जो है वो कब वर्क करेगा कि यहाँ पे कोई जो है फॉल्टी करंट यहाँ पे प्राइमरी में पास होगा इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे अगर कोई फॉल्ट हुआ तो इसका मैग्नीट्यूड करंट का जो वो चेंज हो जाएगा, तो इसी वजह से ये CT सेंस करेगा और सीधा जो है वो कंट्रोल सर्किट के अंदर जो है वो मान लीजिए कि ओवरलोड कुछ हो चुका है, तो ओवरलोड की वजह से क्या होगा, यहाँ पे कुछ हीटिंग प्रोड्यूस होगी और देखिए ये जो करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो वो सिग्नल देगा इसको और वो जो है पूरा ऑफ कांटेक्ट कर देगा और थर्मल ओवरलोड एरिया आपकी ऑपरेट कर जाएगी। ठीक है, सो इस तरह से जो है सिंगल फेज प्रिवेंटर जो है वो वर्क करता है। ठीक है।